Okay, so let us continue. I actually got a surprise. Okay, so Euclidean distance. Euclidean distance is defined as the straight line distance between two points in a plane या फिर space. You can think of it like the shortest path you would walk if you were to go directly from one point to another. What it actually saying is, for example, ये हमारा target point है. सो हम यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं एंड ये हमारा एक्सेस है. सो हम यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं. जस्ट वेट अ सेकेंड प्लीज. आई एम सॉरी फॉर दिस लैक्सिटी. ओके 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 ओके. या. डन डन डन. Perfectos. This is our y-axis. Again, I messed up, but no worries. This is our x-axis. So हम यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हैं. So there can be two ways. हम या तो ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, या एंड ऐसे जा सकते हैं. बट दिस इज नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ. What Euclidean distance is, it is defined as the straight line distance between two points in a plane या फिर space. ये हमारा point वन है, ये हमारा या ये हमारा point टू है. अब यहाँ से हम कैसे जा सकते हैं. That's what it's saying. You can think of it like the shortest path you would walk if you were to go directly from one point to another. अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं डायरेक्टली कैसे जा सकता हूँ. वेरी सिंपल. मैं कुछ इस तरीके से जा सकता हूँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक. एंड दिस वुड बी आवर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. एंड दैट्स व्हाट यूक्लिडियन डिस्टेंस इज. एंड सिंपली वी कैन आइडेंटिफाई कि ये कुछ भी नहीं है बट जस्ट अ पाइथागोरस थ्योरम. Why it is a Pythagoras theorem? Because we can walk through this, we can walk through this, it's 90 degree, this is our hypotenuse, and इस point से इस point तक की जो shortest distance है वो ये हो जाएगी. You can think of it like the shortest path you would walk if you were to go from directly from one point to another, and that's why इसका formula भी यही है. X minus जो हमारा target point है उसका square and उसका under root. Okay, so this was our Euclidean distance. That is just the shortest point जो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में ले सकते हैं. Second is the Manhattan distance. Manhattan distance क्या है? Manhattan distance is something like this. That this is our point one, this is our point two. अब आपको अगर मैं ऑब्लाइज कर दूं कि आपको एक्सेस के थ्रू ही वॉक करना है, जो अपनी एक्सेस रहती है, एक्स एक्सेस रहती है, वाई एक्सेस रहती है, उसके थ्रू ही वॉक करना है. सो हम क्या करेंगे. हम सबसे पहले एक्स एक्सेस में यहाँ से ट्रेवल करेंगे एंड ऐसे जाएंगे, या फिर वाई एक्सिस में पहले यहाँ से ट्रेवल करेंगे, ऐसे जाएंगे. एंड यू कैन सी कि जो टैक्सी है हमारी वो भी कुछ इसी तरीके से ट्रेवल करती है. दैट ऐसे 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 एक सिटी जिसमें बहुत सारी लेन्स है. सो वो भी ऐसे ही ट्रेवल करती है, एंड इसीलिए मैनहट्टन डिस्टेंस को हम टैक्सी कैब डिस्टेंस भी कहते हैं. This is the total distance you would travel if you could only move along horizontal and vertical lines like a grid या फिर city streets. It is also called taxi cab distance क्यों, क्योंकि जो taxi है can only drive along the grid like streets of a city, and that's why इसका formula क्या होता है. This is the formula to calculate Manhattan distance. अब ये ला कहाँ से रहे हैं. So there is a general formula that is Minkowski distance. Minkowski distance is like a family of distances जो कि क्या इंक्लूड करती है यूक्लिडियन भी और मैनहट्टन भी. जब from the formula above, ये जो formula है हमारे पास, it should not be above but below. In the formula below, जब p की वैल्यू हम 2 रख देंगे, it becomes same as the Euclidean distance formula. and जब हम p की वैल्यू 1 रख देंगे, you can check कि यहाँ पे p की वैल्यू 1 रखा, 1 by 1 is nothing, p की वैल्यू 1 रखा, so क्या बन गया, summation from I is equals to 1 to n xi minus yi, and that's what our formula is. It turns into Manhattan distance formula. जो Minkowski distance है is essentially a flexible formula that can represent या तो Euclidean या फिर Manhattan, जो भी p की वैल्यू डिपेंड है. अब हम क्या करेंगे, kn को कैसे हम वर्क करेंगे. So, सबसे पहली स्टेप है कि हम एक ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ k को सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें कितने नेबर्स को अकाउंट में लेना है. उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक एट्रीब्यूट के साथ हम क्या करेंगे, हम जो हमारा टारगेट पॉइंट है जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी हमने नेबर्स को अकाउंट में लिया है, हम उसके साथ
वैल्यूज की डिस्टेंस के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे टू मेजर द सिमिलैरिटी बिटवीन टारगेट एंड ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स यूक्लिडियन डिस्टेंस इज वाइडली यूज्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यूज करेंगे दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस Okay, to measure the similarity between target and training data points, Euclidean distance is widely used. Distance is calculated between data point and data set और target point. उसके बाद हमने nearest neighbors को account में लिया कि जो k nearest distance है, जो k nearest points है हमारे डेटा से जिनकी बीच की distance सबसे कम है, उसे हमने account में लिया and average लेंगे हम regression के लिए and mode को लेंगे हम classification के लिए. That's what it is written. सो जो हमारा क्वेश्चन था, अब बेसिकली हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है, अब सी इसमें हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट पॉइंट क्या है, हमारा टारगेट पॉइंट है आईडी 1111। हाइट दे दी, वेट दे दिया। हम क्या करेंगे, ये जो हाइट एट्रीब्यूट है इसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे कि कौन से के नियरेस्ट नेबर्स हैं, कौन से के नियरेस्ट नेबर है। सिमिलरली हम हाइट और एज के थ्रू हम ये कैलकुलेट करेंगे, हम ये कंप्यूट करेंगे कि कौन से के नियरेस्ट नेबर है। अब सिंस हमें यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है तो जो भी के नियरेस्ट नेबर्स के वेट है हम उसका एवरेज निकाल देंगे एंड उससे 11 को प्रिडिक्ट उसे 11 को असाइन कर देंगे, सिंपल एज दैट। ओके, बूम, आई एम लविंग इट सीरियसली। हमने के को 3 चूज किया फॉर सिंपलिसिटी, अ कॉमन डिफॉल्ट फॉर स्मॉल डेटा सेट्स। जब छोटे छोटे डेटा सेट्स रहते हैं तो हम के को 3 लेते हैं। कैलकुलेटिंग डिस्टेंस, अब हम क्या करेंगे, जो हमारी आईडी 1111 है उसके साथ हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। कैसे डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हाइट क्या है 5.55, ये रहा 5.55 माइनस जो आईडी 1 थी हाइट उसका क्या है 5, तो 5.55 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस गिवन जो हमारी आईडी 11 है उसकी एज कितनी है 38 है, आईडी 1 की एज कितनी है 45 है, तो 38 माइनस 45 का होल स्क्वायर उसका अंडर रूट लिया। डिस्टेंस कितने की आ गई 7.02 की। सो जितने भी एट्रीब्यूट्स है उसे हम टारगेट पॉइंट्स के रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट्स के साथ सब्सट्रैक्ट कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे and जो जितनी भी वैल्यूज हैं उनका हम समेशन कर लेंगे और उस समेशन का स्क्वायर रूट लेंगे। दैट्स व्हाट यूक्लिडियन डिस्टेंस इज। फॉर एग्जांपल 5.11 हमारे पास गिवन हाइट कितनी है 5.5, तो 5.5 माइनस 5.11 का होल स्क्वायर प्लस हमारी हाइट है 38, तो 38 माइनस 26 का होल स्क्वायर एंड इन सबका वेट दिया है। सो वेट को अभी हम कुछ नहीं कर सकते, जस्ट हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इसी तरीके से हमने जितने भी 10 पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली। अब लेट्स सी कि सबसे कम डिस्टेंस वाले कौन से 3 नेबर्स है। वी कैन सी कि जो 10th आईडी वाला है पॉइंट उसकी हाइट 6 है एंड आई थिंक इट इज वन ऑफ द closest neighbor. No, I'm wrong. Why? Because if you will check all the distances properly, you will find कि 2.22 की डिस्टेंस के साथ जो 6 नंबर का पॉइंट है जिसकी हाइट 5.8 है एंड जो वेट है वो 36, सॉरी जो एज है वो 36 है, वो पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 2.12 के साथ पॉइंट नंबर 5 है एंड जो थर्ड पॉइंट 4.02 की डिस्टेंस के साथ जो हमारी आईडी नंबर 4 का पॉइंट है वो थर्ड नियरेस्ट नेबर है। सो हम बस इन्हीं को अकाउंट में लेंगे, बाकी सबको डिस्कार्ड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो 60, 72 एंड 59 इन तीनों का एवरेज निकाल देंगे एंड जो हमारी आईडी 11 का वेट है उसे असाइन कर देंगे। ये सब डिस्टेंस आ गई। अब हमें तो सिर्फ 3 नियरेस्ट नेबर्स ही लेने थे। सो हमने कौन कौन से लिए, 4, 5 एंड 6 एज वी डिस्कस, जिसका वेट है 60, 72, 59, तीनों का एवरेज लिया। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दिस stupidity. I don't know stupidity is the right word for this inconsistency. I'm sorry. So जो हमारी, okay, come on, like we can calculate the average 60, 72 कितना हो गया 132, 132 9 10 11 का 1 कैरी किया 1, 191. Okay, let's check it with calculator. See this.
all the fun talks. 60 plus 72 plus 59. See, 191. Okay, thank you so much, God, or else it would be a great fiasco. Okay, so 191 divided by 3 is 63.66. That is close to 64. तो जो हमारा फाइनल प्रिडिक्टेड वेट होगा वो 64 होगा. सो सी हाउ मैजिकली एंड ब्यूटिफुली हमने प्रिडिक्ट कर दिया. एक मिसिंग वैल्यू को हमने प्रिडिक्ट कर दिया. सो फाइनली जो हमारा 11th नंबर की जो आईडी थी, हमने नियरेस्ट नेबर्स के थ्रू डिसाइड किया कि इनका जो वेट होगा वो 64 होगा. एंड वी कैन सी कि जिनका भी वेट, हाइट जिनकी 5.55 है एंड एज 38 है, इनके आसपास के जो वेट है वो 64 ही होगा. एंड विच इज 6, दिस एंड दिस. So this was all about the k nearest neighbor algorithm. इसे हम lazy learner algorithm क्यों कहते हैं, हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस मैट्रिक्स क्या होती है, मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है, यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है. It was all about that. And yeah, perfect. Now it looks better. So this was all about the topic, the question. Thank you so much.